प्रिडिक्शन जरूरी नहीं है। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है आप उसको फ्यूचर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजी के पास इसलिए जाना है क्योंकि आप आज कंफ्यूजन में हैं, आपको आज अपना रास्ता नहीं दिख रहा है। सो आपका कंसर्न एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए इतना ही होना चाहिए कि मुझे आज इस प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे अपने आप को अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइन करना है ना। आपने आज अपने आप को अलाइन कर लिया तो फ्यूचर विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना। क्योंकि फ्यूचर का सीड तो आप आज ही डाल रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस तो डेस्टिन्ड है, इसीलिए हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देख पा रहे हैं। Hello everyone, I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Perfect Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Miss Ruchi Arora. She is a seasoned counselor, astrologer and tarot card reader, has dedicated her expertise to guide thousands on aligning their life with their unique path through the profound insights of astrology. With a decade-long career as an head of loyalty cards in five-star hotels, she transitioned to a more fulfilling pursuit, delving into mysteries of life. Commencing her astrology journey in 2017 at the esteemed Bharatiya Vidya Bhavan, she emerged as a medalist for both years, followed by a year of intensive research under the guidance of Shri K.N. Rao. In 2019, she further expanded her repertoire by mastering tarot card reading, integrating these skills into her counseling practices to empower individuals in living authentic and joyful lives, aligning with the cosmic forces. Her approach as a counselor revolved around utilizing astrological charts and tarot cards to pursue and provide personalized insights, allowing individuals to navigate their lives in harmony with planetary influences. Her mission to facilitate a more authentic existence of her clients, guiding them towards path of contentment and joy. Today, she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome, Ruchi ma'am. The platform is open and now over to you. Thank you so much, Jitendra, for such a lengthy and a wonderful introduction. So, I guess introduction तो आपने कर ही दिया है मेरा. So yeah, being a hotelier for 13 years, the question was that is it something that I would like to do rest of my life, but the answer was there's more to it, than just earning a money in spite of having a very successful career, but हमेशा ऐसा था कि कुछ meaningful करना है life में, So then I took a year's break to explore and figure it out that what exactly I would like to do. And then I thought of a psychologist, psychiatrist, many such things came into my mind. But then luckily somewhere I read this line that a psychologist can guide you only through your conversation which you are having with that person, right? But an astrologer can see beyond that, what you're not even telling me. So that's how astrology came into my life, that I wanted to counsel people in their difficult times. I wanted that there should be somebody that they can approach without hesitation. Because क्या होता है, जब भी हम परेशान होते हैं ना जितेंद्र, हम अपने फ्रेंड से कंसल्ट करते हैं, फैमिली से कंसल्ट करते हैं, वो सब हमें अपनी एबिलिटीज के हिसाब से सही गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, राइट? लेकिन हो सकता है कि हमारा पाथ कुछ डिफरेंट हो, हमारी इंस्टिंक्ट हमें कुछ और करने के लिए बोल रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोसाइटल प्रेशर में आके, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के प्रेशर में आके, जो हमारा डेस्टिन्ड पाथ है उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी सफर, बिकॉज हम अलाइनमेंट में नहीं है उस पाथ से जिस पाथ को वी आर सपोज टू डू. सो ये बहुत ही एक अच्छा मिक्सचर मुझे मिला लकीली, कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एंड दीज आर द फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जो आपके जब आप का बर्थ हुआ तो ये एक डेस्टिन चार्ट आपका बन गया. नाउ टैरो केम इनटू माय लाइफ, सो टैरो से हम क्या देखते हैं कि आप इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं,
इस टाइम पे आपकी एनर्जीज में क्या है, इज इट मनी दैट यू आर वरीड अबाउट, इज इट पैशन दैट यू आर फुल ऑफ, और इज देयर अ लव, इज देयर इमोशंस, और आर यू फीलिंग लो, और आर you in some kind of a dilemma? So tarot, I would say, is a complete magic, that I'm thinking about you, spreading a cards, and I can exactly see that what is going on in your mind. Right. But then I always say that when you ask something from the universe, that you are seeking your answers, desperately, then you will be able to come in the contact of a right person where you will get your answers, because universe आपको कैसे answers देंगे, किसी के थ्रू देंगे, है ना? So जब आप ऐसे answers की तलाश करते हो तो हमारे जैसे लोग आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं जो आपके आंसर्स दे पाते हैं टू एन एक्सटेंट। एंड जितना शायद आप डेस्टिन्ड है सुनने के लिए, तो पढ़ाई तो की है, उसके साथ ये होता है कि आपकी इंट्यूशन काम करती है जब आपके पास कोई आता है तो। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, योर इंट्यूशन, सो अ परफेक्ट blend of all that. Right. So that's really wonderful to know about you. Now, to know more from you, from your journey, about your journey. So I would like to ask you, how did your past life has affected the person you wanted to be in your life and what you are? So it's moreover related to your childhood memories. You would be having certain thoughts about your career options, which you would like to pick up then. So from there. So Jitendra, it's like when I was in college and I was doing English honors, तभी क्या होता था कि मैं शेक्सपियर की जगह लिंडा गुडमैन पढ़ती थी। So कहीं ना कहीं वो inclination जरूर था इस तरफ, but I was not aware that I'll be an astrologer or a tarot card reader one day. So school में thoughts आते थे, हर तरह के आते थे, that you wanted to be a news reader because you think you can speak well, you are presentable. So all these thoughts used to come in my mind, but I was not that career oriented. When I have started with the hotel industry also, it has came to me by itself. It was not a target that I wanted to be in a hotel industry. But now when I see my own chart, you see that why this happened, why you took a break, how astrology came into your life. So it was all destined. And meanwhile, I met an astrologer also when I took a sabbatical from my career. So he predicted few things about me, that this time I was doing this time I was doing this, few things, about my relationship. So उसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया कि all this while I was thinking that I was the one who was doing this, So how could the third person tell me that this date I'm doing this, that date I have done that? So that curiosity also, that how much of your life is destined and what is the area of free will? Is there anything which is in your hand, or is everything destined? Has also pushed me towards this thing. And as you're saying with the past key, as a child also, these kind of questions, came into my mind that, why you need to be good? If somebody is bad, why the person is bad? What is the outcome of this thing? And then the situation happens in my life where I went to Vipassana. If you heard about it, where 10 days, you are quiet for 10 days and throughout day, you're just meditating, doing nothing. There is no contact with the social world. You're just with yourself throughout the day meditating. सो उसने बहुत हेल्प किया, बिकॉज जब 10 दिन आप अपने साथ सिर्फ होते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देख पाते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हुए वो कैसे हुए, वो कैसे पहले आपके थॉट प्रोसेस पे जनरेट हुए, फिर वो कैसे मैनिफेस्ट हुए। सो आपने लाइफ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। मतलब इट इज नॉट दैट आई हैव स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, देयर आर थिंग्स व्हिच आई हैव experienced it as a person when I was in Vipassana, when I was meditating in this Vipassana. Also, I went for 4-5 times, so then it also has given me a bigger perspective कि जिंदगी जीते कैसे हैं, बचपन में होता क्या था, जब आपके फादर आपको बोलते थे कि लाइफ न्यूट्रल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा सैडनेस, ये चीजें अच्छी नहीं है, तो समझ नहीं आती थी। सो वो चीजें एक्सपीरियंस से समझी कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, एंड देन द फीलिंग वाज नाउ टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. So then astrology and tarot is a tool to do that. Amazing. So now further, if I ask you, what are the things you are passionate about in your life and what is the role of motivation and inspiration onto it? और जितेंद्र, मोटिवेशन तो ऐसा है जब लोग आपके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो जिस मूड में आते हैं और जब वो जाते हैं, वो जितना रिलीव्ड फील कर रहे होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एंड जब वो मैसेजेस करते हैं कि हम बहुत बेटर फील कर रहे हैं अब, एंड वो जब भी उनको दोबारा
दोबारा जरूरत होती है, वो आपके पास आते हैं, वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गाय इज कमिंग, देन ही विश कि मतलब उसकी वाइफ भी आए और वो समझे कि जो चीजें उनकी लाइफ में हो रही है वो क्यों हो रही है. हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं वैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, या मेरी वाइफ ऐसी नहीं वैसी होती तो अच्छी होती, या मुझे ये चीज जल्दी मिल जाती या थोड़ा लेट मिल जाती, या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना. सो ये सब सवाल लेके लोग आते हैं, एंड जब उनको उनके थोड़े से आंसर्स मिल जाते हैं, ऑल्दो इट्स अ प्रोसेस, एक ही काउंसलिंग में आपको सब कुछ बताना बहुत ही मुश्किल है. बट एज आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स दैट आप आज उतना ही सुन पाओगे जितना यू आर डेस्टिन्ड टू लिसन, जितना आपने यूनिवर्स से मांगा है, बट उतना आप जरूर सुन के जाएंगे. कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल कर पा रहे हो, उनको लोड टाइम से बाहर निकाल पा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है. एंड अच्छा खासा कॉर्पोरेट करियर छोड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी में आना, सो मनी वाज नॉट द मोटिव. द मोटिव वाज दैट your intention to do something for your people, your intention to do something for the society, which gives you a satisfaction to the core that you are really doing something meaningful. So that's my motivation. Amazing. So now if I ask you like about your work and experiences, how you started your work and how you got into this journey, like what made you move to spirituality, like astrology and like tarot? So क्या होता है ना, जब आपकी जिंदगी में कुछ डेस्टिन्ड होता है ना जितेंद्र, तो लाइफ के इवेंट्स आपके वैसे वैसे बनते चले जाते हैं, है ना. सो एज आई हैव सेड कि आई मेट एस्ट्रोलॉजर, तो उससे भी मेरी लाइफ में क्यूरोसिटी आई. कुछ पर्सनल लाइफ में आपके ऐसे इवेंट्स हुए कि व्हेन यू वर अ किड, यू वर हाई ऑन अ लाइफ, देन यू हैव सीन मेनी अदर थिंग्स, सो ये एक चेन और एक सीरीज बनती चली गई जो आपको इन चीजों की तरफ अपने आप ले आई. पहले आपने विपासना की, विपासना के बाद एस्ट्रोलॉजी आई, एंड एस्ट्रोलॉजी में 2 साल जो मेरी बेंचमेट रही वो टैरो कार्ड रीडर थी. तो मेरे एस्ट्रोलॉजी करने के बाद शी सजेस्टेड दैट यू शुड लर्न टैरो, आई थिंक यू विल डू वंडरफुल, सो दैट्स हाउ टैरो केम टू मी ऑटोमेटिकली. तो चीजें अपने आप आती चली गई. जो जो आपकी डेस्टिनी में होता है ना, प्लैनेट्स आपको पुश करते हैं. अगर आपकी इंस्टिंक्ट सही है, आप अपनी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि डेस्टिनी आपको किस तरफ लेके जा रही है ना. और जो लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे अभी, उनके लिए हम हैं. और जो कॉर्पोरेट टू दिस जर्नी, वो कॉर्पोरेट वाला जर्नी कैसा रहा? कॉर्पोरेट वाला जर्नी बहुत अच्छा और बहुत फुलफिलिंग था जितेंद्र. दैट एक छोटा सा वो स्मॉल इंडस्ट्री होता है लॉयल्टी कार्ड का, कि कुछ मार्केटिंग कंपनीज कर रही होती है. सो आई वाज डूइंग वेरी वेल देयर, बट दैट्स हाउ दैट मोनोटनी केम, दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू विद माय क्लोज्ड आईज एज वेल, एंड आई एम नाउ जस्ट ड्रैगिंग इट फॉर द गुड चेक दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, बट उस चेक ने मुझे मोटिवेट करना बंद कर दिया. सो बट ये हुआ कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी काउंसलिंग शुरू की, क्योंकि एक कॉर्पोरेट करियर की आदत थी और आप एक कॉर्पोरेट क्लास को सर्व करना चाह रहे थे, क्योंकि ये मानना है एक सोसाइटी में कि एस्ट्रोलॉजी मिथ है कुछ लोगों का, या बहुत ये ऑर्थोडॉक्सी अप्रोच है, या ये साइंस नहीं है, या इसका कोई मतलब नहीं है. सो आई वांटेड इट टू रीच टू a so-called educated class and that corporate class, and इसलिए जो मेरा ऑफिस था वो भी I have started in a co-working space, so I have got a cabin there जहाँ पे ऐसी ही जेंट्री आपको मिलेगी. so ये थोड़ा सा unusual था, क्योंकि co-working spaces में generally IT और इन सब ये वाली जेंट्री ज्यादा होती है. तो having a office there itself is little unusual, but I have got a very very good response there as well. Right, amazing. So now if I ask you about your vision, mission and goal in life for next 5 to 10 years from now, what would that be? गोल तो यही है जितेंद्र कि आप लाइफ में जो भी करो, आप जिस इंटेंशन के साथ ये स्टार्ट हुआ था कि आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, एंड जैसे जैसे टाइम आएगा, आज आप कुछ लोगों को कैटर कर रहे हो, आने वाले टाइम में शायद कुछ ज्यादा लोगों को कैटर करोगे, बट एज अ पर्सन आई फील दैट आई एम ऑल्सो लर्निंग अ लॉट इन दिस प्रोसेस. व्हेन यू गाइड समबडी, व्हेन यू काउंसिल समबडी, यू हियर योरसेल्फ, एंड लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते बनाते आपकी अपनी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर बनती जाती है ना. तो ऐसे बहुत बड़े गोल्स नहीं है कि आपको कोई एम्पायर खड़ा करना है. बहुत ही सिंपल और छोटा सा गोल है कि जो भी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, उनको आपने एक सही डायरेक्शन दिखानी है, उसी बहाने आपको भी डायरेक्शन मिल जाएगी. परफेक्ट. ये बहुत सिंपल और छोटा सा गोल है, कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है. ठीक है. The way you move on with the life
you got so many experiences, so many like people Absolutely. connect with you. So goals keep on changing depending on situation, depending on Absolutely. You are you are absolutely right. right. So now Absolutely. if I ask you to see your life till now from your Hmm. personal and professional journey, so what are most important life learnings you have learned? Lessons I have learned. So the most important lesson that I have learned, Jitendra, that nothing is permanent. You know, life goes in a cycles, and हर अच्छे moments के बाद कुछ tough moments आएंगे. मैं खराब नहीं बोलूंगी, हाँ, but कुछ tough या कुछ challenging moments आएंगे. फिर life में आपको कुछ अच्छे moments आएंगे. So विपासना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सब चीजों ने एक ही चीज सिखाई कि कभी भी किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, किसी भी मूवमेंट को बहुत कस के पकड़ने की कोशिश मत कीजिए. लाइफ को फ्लो में बहने दीजिए, है ना. जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, उसमें आप बेस्ट इनपुट अपना क्या दे सकते हैं. That's the only thing, you know, which will keep you going. कि आज मेरे सामने ये मोमेंट है, आज मेरे सामने ये सिचुएशन है, what best I can put into it. That's it. Right. And you will sail through. Any other thing you would like to add? हाँ, द ओनली थिंग इज कि अगर देखिए, ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ शायद हर किसी को अगर आने की जरूरत नहीं भी है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत कंटेंटेड हैं, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, आपको एक काउंसलर की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बट अगर आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये लग रहा है कि आप डायलेमा में हैं, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वाई नहीं, आप खुश नहीं है अपनी जिंदगी से, सेटिस्फाइड नहीं है, आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है, तो इन सब सिचुएशंस में आई फील दैट यू मस्ट कंसल्ट अ प्रोफेशनल. बिकॉज जैसे आपको फीवर है तो आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं, तो अगर आपकी जिंदगी में कोई भी डायलेमा है तो आप प्लीज एक प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए, जो आपकी लाइफ को एक थोड़ी सी डायरेक्शन दिखा सकता है एंड उसको पूरे फुलफिलमेंट के साथ जीना चाहिए. मतलब ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी तो ऐसे ही है, हम इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको खाली सही डायरेक्शन चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि वो डायरेक्शन आपकी लाइफ में मिसिंग है, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट प्लीज कंसल्ट अ काउंसलर. इट विल बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. डू नॉट हेजिटेट. Right. So now, since you've been practicing astrology and tarot, so on to this, if I ask you, like, why do you believe contributes to the common fear of skepticism surrounded by astrology, and how can astrologers address these type of concerns or problems like people may face while practicing and astrology or any kind of these type of science or arts, whatever we call it? देखिए, होता क्या है कि प्रिडिक्शन जरूरी नहीं है. आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उसको फ्यूचर पे छोड़ दीजिए, ठीक है. आपको एस्ट्रोलॉजर के पास इसलिए जाना है क्योंकि आप आज कंफ्यूजन में हैं, आपको आज अपना रास्ता नहीं दिख रहा है. सो आपका कंसर्न एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए इतना ही होना चाहिए कि मुझे आज इस प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे अपने आप को अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइन करना है ना. आपने आज अपने आप को अलाइन कर लिया तो फ्यूचर विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना. क्योंकि फ्यूचर का सीड तो आप आज ही डाल रहे हैं. आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस तो डेस्टिन्ड है, इसीलिए हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देख पा रहे हैं. सो अब हमारी फ्री विल कहाँ आती है? हमारी फ्री विल आती है कि उन सिचुएशंस पे जो हमारी लाइफ में आई हैं, उन पे हमारा रिएक्शंस क्या है, हम उनको कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं. अगर हम उनको सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए एक सही सीड इम्प्लांट कर रहे हैं. और जहां हमने एक सही सीड इम्प्लांट कर दिया, हमारा फ्यूचर गलत हो ही नहीं सकता. अगर उसमें कुछ डेस्टिन्ड सिचुएशंस आएंगी भी तो हमने एक सीड सही डाला है, हम उस सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करके सेल थ्रू कर पाएंगे. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीपल शुड थिंक दैट कोई रॉकेट साइंस नहीं हो जाएगी एकदम से. हाँ, एकदम से. एग्जैक्टली. प्रॉब्लम है, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, और करंट सिनेरियो में क्या सॉल्यूशन, क्या आउटकम है, वो आप समझ के वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो दैट वे. बिल्कुल. एंड हम बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रेमेडीज बताते हैं, कोई एक्सपेंसिव रेमेडी नहीं, कुछ नहीं. मंत्रा, नॉर्मल थिंग्स जो आप डेली रूटीन में, द काइंड ऑफ अ फूड दैट यू शुड ईट, प्रॉब्ली अ फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस, दैट्स इट, जो बहुत ही आसानी से आप अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं.
So my next question was about this only, like how can individuals benefit from consulting an astrologer, and what like they should expect in terms of realistic expectation from the astrological session, like in to get the insights and guidance from the expert. इतना ही देखिए, जैसे मैंने बोला जितेंद्र, टैरो से हमको करंट एनर्जीज पता चलती है ना, तो हमें पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, आप लो एनर्जी में हैं, आप हाई एनर्जी में हैं, आपके दिमाग में पैसा है। सो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, और आपकी जो एनर्जीज है जो आप फील कर रहे हैं क्या वो उसके साथ अलाइनमेंट में है कि नहीं है ना। तो जो चीज Right. अलाइनमेंट में नहीं है हम आपको बताएंगे कि ये चीज अलाइनमेंट में नहीं है, या ये थॉट प्रोसेस आपका ठीक नहीं है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लाके आगे बढ़ सकते हैं। सो इतना सा आप कीजिए अपनी लाइफ में, वो काफी है, यू नो, विदाउट इवन थिंकिंग कि अब मैं फ्यूचर में मिलेनियर या बिलियनियर बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ज्यादा आउटकम पे फोकस करेंगे और प्रोसेस को मिस कर देंगे तो फिर आप लाइफ में कहीं नहीं जा पाएंगे। बट अगर आप प्रोसेस पे आपका पूरा ध्यान है, आप अवेयर है इस मूवमेंट में, तो आपका आउटकम अच्छा होना ही होना है। Correct. है ना। Correct. तो इतनी सी एक्सपेक्टेशंस के साथ आइए एंड यू विल बी गाइडेड थ्रू इन द राइट डायरेक्शन। Right. And also, there are some misconceptions about astrology or tarot or any other form of these arts. So, like, how to encounter these issues to navigate the misunderstanding or challenges people may think or may have, like, how to help people should appreciate in terms of like value what they would be deriving from these sessions or insights. देखिए, इसके लिए तो जितेंद्र आना आपको पड़ेगा एक बार, है ना, काउंसलर के पास। एंड ये कोई इतनी महंगी चीज नहीं है कि कोई ना ट्राई कर सके, है ना। एंड इससे कोई भी हार्म नहीं होगा अगर आप एक सही प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं जिसको पता है कि आपको क्या बताना है, कितना बताना है, कब बताना है। अगर आप ऐसे एक सही प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो उस कंसल्टेशन का कोई भी हार्म नहीं हो सकता। And as I've said, tarot is a magic. So to believe in the magic, you have to see the magic, but you have to come with a faith, you know. Divine magic आप ऐसे ही नहीं देख पाएंगे जब तक आप एक फेथ के साथ नहीं आ रहे हैं कि मैंने, क्योंकि यूनिवर्स से अपने सवालों के जवाब मांगे हैं, सो यूनिवर्स ने मुझे इस इंसान की पिक्चर, फोन नंबर या कुछ भी कहीं दिखा दिया है, एंड लेट मी जस्ट गिव अ ट्राई टू इट, है ना। एंड उसके बाद यू हैव अ ऑप्शन कि आपको अपनी लाइफ में कभी जाना है कि कभी नहीं जाना है। सो ऑल आई से इज कि आप जाइए, ट्राई कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये सही है या ये सही नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। Can you share any example of any people, like how they came to you and having kind of misconception or kind of any kind of challenges they had? How they came to me, जितेंद्र, इसका तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मेरे नोन में 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो एक सिस्टर ने मुझे नाइट में मैसेज किया दैट आई वांटेड टू हैव अ कंसल्टेशन इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो मैंने वो कंसल्टेशन अगले दिन सुबह जब काम शुरू किया, मैंने वो कंसल्टेशन शुरू की। इट वाज अ ऑनलाइन कंसल्टेशन, शी वांटेड थ्रू अ चैट ऑन अ व्हाट्सएप, ठीक है। सो मैंने उनके टैरो कार्ड्स निकाले, मैंने एनर्जीज देखी, मैंने सब उनको भेज दिया दैट दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग एंड दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन एंड दिस इज व्हाट द गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ शी मैसेज्ड मी, जितेंद्र, टू माय सरप्राइज दैट दी हाउ कम यू आर डूइंग माय रीडिंग टुडे। आई सेड यू मैसेज्ड मी लास्ट नाइट। So she said, नहीं, मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया। And then I realized that I got confused between 2 sisters. कि जिसने मुझे पूछा, मैंने उसके सिस्टर को ये सारा गाइडेंस भेज दिया। एंड देन शी कॉल्ड मी एंड सेड कि दी, मैं पूरी रात, मतलब शी वाज अ शिव डिवोटी, मैं पूरी रात भगवान से लड़ रही थी कि आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं आ रहा है, मैं आपको मानना बंद कर दूंगी, मैं बचपन से आपकी पूजा कर रही हूँ एंड आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। एंड यू नो, एंड शी सेड दैट यू हैव गिवन मी ऑल द आंसर्स दैट व्हाट आई वाज आस्किंग हिम, कि नहीं आप मुझे दीजिए मेरे जवाब। एंड पता नहीं कहाँ से आपके मुझे मैसेजेस आ गए एंड मैं क्यों कंफ्यूज हो गई दोनों सिस्टर के नाम में, और मैंने दूसरी को गाइडेंस दे दी। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, दीज थिंग्स आर डिवाइनली गाइडेड। तो अगर आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, कोई ना कोई चैनल ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाएगा कि आपको वो गाइडेंस मिलेगी। तो आप मांगिए तो सही, आप सही रास्ता बोलिए तो सही दिखाने के लिए, कोई ना कोई जरूर आपके पास आएगा जो वो आपको रास्ता दिखाएगा। Correct. So ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। So from your experience, like how can astrology play a positive role in enhancing self-awareness and personal growth for individual who might initially be hesitant or doubtful about its effectiveness? तो कुछ cases ऐसा भी आया
आया होगा आपके पास फ्रॉम देयर? कि जहाँ लोगों को फेथ नहीं था। हाँ, फेथ नहीं था, या इनिशियली दे वर डाउटफुल और हाँ, तो हेजिस्टेंट ऐसा अबाउट? होता है। हाँ, तो क्या हुआ, एक आए मेरे पास जनाब, तो उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन उस टाइम चल रहा था, एंड उन्होंने कहीं मेरा सोसाइटी के ग्रुप में एक टेम्पलेट देखा था कि मैं वहां पे रोज डाल रही थी अपने रिव्यूज, क्लाइंट फीडबैक, एंड वो गवर्नमेंट जॉब कुछ छोड़ के नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा यार बहुत कंफ्यूजन का टाइम है, गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ सिक्योर होती है, तो मुझे ये छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत डायलेमा में थे। और ऐसा कोई ज्यादा उनको फेथ एस्ट्रोलॉजी में नहीं था, बट क्योंकि ऐसी सिचुएशन में थे, मेरे टेम्पलेट्स रोज सोसाइटी में देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलिए एक बार ट्राई किया जाता है, ठीक है। सो ही बुक्ड एन अपॉइंटमेंट, ही केम टू मी। सो उनके आने से 5 मिनट पहले मैं उनका चार्ट देख रही थी कि इनके क्या चल रहा होगा, मतलब इनकी लाइफ में, एंड आई वाज राइटिंग सम कीवर्ड्स, keywords like expansion, change, career, business, ऐसे कुछ keywords मैंने उनके लिए लिखे हुए थे. So when he came and he was talking about that what is going on in his life, and then I showed my diary to him. I said, see, whatever you are saying, I have already written that. Right, so he was like very shocked with that situation कि अच्छा मैं क्यों इतना सोच रहा था, मेरे प्लैनेट्स मुझे पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और मैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें, सोसाइटी, वाइफ, बच्चा छोड़ के आई वाज स्टक, बट इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। तभी तो कोई तीसरा इंसान जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, आपके आने से पहले वो सब लिख रहा है कि हाँ हाँ आपकी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं। सो बट बहुत ही बोल्ड डिसीजन, ही सेड कि नहीं, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ऑन अ राइट पाथ, एंड अब क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, अब मैं इसको पूरी शिद्दत से कर पाऊंगा। नहीं तो अभी तक मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी चीजें। Right, this type of situation happens with many people, like sometimes all of us. And Yes. if I ask you, like, what advice do you have for someone considering their first visit to an astrologer? How they can make the most of the experience and overcome the pre-convinced fear of reservations or any kind of such thing. So what they keep in mind before going to or ask the consultant? Now, how they should ask actually in a right way. मैं ये बोलूंगी कि उनको बस पूरे फेथ के साथ आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक पूरे फेथ के साथ आ रहे हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, सो आपको जरूर मिलेंगे। जैसे होता है ना, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर की दवाई किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती है ना, एंड जहां हमारा फेथ होता है, नहीं इस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, नाउ इट इज गोइंग टू बी वर्किंग फॉर मी एंड आई विल बी फाइन। सो आप उस फेथ के साथ आइए, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। जो भी आप उस टाइम सुनने के लिए डेस्टिन्ड है, वो आपको सुनने को जरूर मिलेगा। सो द फेथ इज द की। लेकिन अगर आप टेस्ट करने के लिए आएंगे कि अच्छा मैं टेस्ट करके देखता हूँ ये काम करती है कि ये काम नहीं करती है, तो शायद वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो एक बार फेथ से आप उसको ट्राई करके देखिए, एंड फिर देखिए कि आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड आप फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है। वैसे तो जितेंद्र, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में एक हाउस, एक कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है, आप एस्ट्रोलॉजी के पास भी तभी जा पाते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं भी जा पाते उनकी गलती नहीं है। कोई कितना भी सोच ले, आप नहीं आ पाओगे जब तक आपके चार्ट में वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 8th हाउस एक्टिवेटेड नहीं होगा या राहु केतु एक्टिवेटेड नहीं होंगे, तो आप नहीं आ पाओगे, है ना। तो इसीलिए ऐसे इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। जिसको जरूरत है उसके लिए है, और जिसको जरूरत है उसको आना चाहिए। Right. So in last, any message or advice you have for our viewers and listeners? The only thing I'll say that life is beautiful. That doesn't mean कि हर टाइम हर चीज आपके साथ बहुत अच्छी हो रही है। Life is beautiful means कि अगर आपको जिंदगी जीनी आ गई हर सिचुएशन में, कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, you know how to maximize on it, you know how to optimize on it, you know how to live in this moment. You लिव अ वंडरफुल लाइफ, है ना। तो उसको खाली आई वुड सजेस्ट कि खाली एक पैसे के पैरामीटर से मत कीजिए कि मेरी लाइफ उतनी ही सक्सेसफुल है जितना मैंने पैसा कमा लिया, ठीक है, जो एक बहुत कॉमन पैरामीटर हम सबके लिए बन गया है, ठीक है। सो वो पैरामीटर सक्सेस का सिर्फ पैसा नहीं है, वो पैरामीटर सक्सेस का ये है कि आप कितनी एक्सेप्टेंस के साथ अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड माय डिटेल्स आर देयर, जितेंद्र ने डाल दी है my number and Insta ID, so please contact if you feel that you need a help. That's it.
Sure, and it was really an insightful discussion. You shared so many the things which people have in their mind, confusion hai ya doubt hai, whatever. So it is really important that whatever you are doing, you do it with complete trust, complete faith. हो सकता है चीजें कई बारी आपको समझ ना आए उस टाइम पे. Might possibly you understand them at a later stage, but it's really important that you follow the thing in the right perspective. और positivity के साथ करो तो definitely everything converts into a positive situation. So that's really nice. And your journey from corporate to like a different field altogether, which is astrology and tarot card reading. So that's again a transition, and that's a huge transition from one life to another life. That's amazing. And I really enjoyed the conversation. Looking forward to hear more from you again soon, maybe on a specific topic related to astrology or something related, deep dive into it. So we will look forward to it. Thank you so very much for your time and energy. Thank you so much. Thank you, Jitendra. And I will also definitely, you mentioned it, I will also share your social media link along with the interview so that people can be in touch with you, take your help and guidance wherever they feel like. So guys, don't forget to check that out too. And thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye.